اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت 6 روز میں عام انتخابات کرائے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اگلی مرتبہ 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد واپس آؤں گا۔ جناح ایونیو پر عوام سے خطاب کے دوران عمران خان نے کہا کہ سارے پاکستانی پہلی مرتبہ متحد دیکھے ہیں، جس طرح آنسو گیس کا مقابلہ کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہماری قوم خوف سے آزاد ہو گئی ہے اور اب امپورٹنٹ حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ اس آزادی کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے ہر قسم کا طریقہ استعمال کیا گیا۔ اب ہماری قوم مجرموں کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کا بیٹا حمزہ شہباز سنگین جرائم کے مرتکب ہیں اور انہیں ملک کی بھاگ دوڑ دے دی گئی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات سے اب تک 5 کارکنوں کو جاں بحق کر دیا گیا۔ ہم پرامن احتجاج کے لیے نکلے ہیں اور کبھی انتشار کی ترغیب نہیں دی۔ ہمارے جلسوں میں ہمیشہ فیملیز آتی ہیں، احتجاج میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ان پر آنسو گیس کا آزادانہ استعمال کیا، اس لیے سپریم کورٹ پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد کا نوٹس لے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان 20 لاکھ کی جگہ 6 لاکھ لوگ بھی اسلام آباد لے آئے تو الیکشن کی تاریخ دے دیں گے۔ عمران خان 20 لاکھ تو کیا 6 لاکھ افراد بھی نہیں لا سکے۔ نجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا، پھر یہ طے ہو جائے گا، جو 6 لاکھ افراد اسلام آباد لے آئے اسے الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ عمران خان 6 دن میں تیاری کریں اور 6 لاکھ لوگ لے کر آئیں۔ عمران خان یقین دہانی کرائیں کہ وہ خیبر پختونخوا حکومت کے سہارے کے بغیر لوگ لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی مرضی کی عدالت، حکومت اور ہر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ عمران خان ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، ہر بات پر ڈیڈ لائن اور دھمکی دیتے ہیں۔ مظاہرین کو مصروف عمل رکھنے کے لیے ہم نے اقدامات کیے تھے۔ وفاقی حکومت نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان نے اپنے کارکنان کو ڈی چونک بھیجا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی انتظامات کے رد و بدل کے بعد پی ٹی آئی ورکرز نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ فائر بریگیڈ کی کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا تھا کہ تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کے لیے متبادل جگہ فراہم کی جائے اور راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹائی جائیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جلسے کے شرکاء ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے اور سرکاری و نجی املاک کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ پچیس مئی بروز منگل پریسنٹ 70 بروکلن میں ماہانہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پریسنٹ انچارج مسٹر سپرانو، مسٹر ڈیوڈ پال، چیئرمین کمیونٹی افیئر ملک ناصر امان، لیزان آفیسر مس نینسی، کمیونٹی کونسل شان کیمبل، محمد اشفاق شیخ جنرل سیکرٹری، جاوید اقبال چیچی ڈائریکٹر اور مشتاق احمد کمبو چیف کوآرڈینیٹر انٹرنیشنل انٹرفیتھ ہارمنی افیئرز و دیگر کمیونٹی اور پریسنٹ کے عملہ نے بھرپور شرکت کی۔ دوران میٹنگ مختلف امور کے ساتھ جرائم کے خاتمہ اور مسالک و مذاہب کے درمیان بھائی چارہ اور ہم آہنگی کو فروغ دیے جانے و کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے غور کیا گیا۔ عالمی بینک کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین پر حملہ خوراک، توانائی اور کھاد کی قیمتوں میں اضافے کے باعث عالمی کساد بازاری کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈیوڈ مال پاس نے بدھ کے روز ایک امریکی کاروباری تقریب میں کہا، یہ دیکھنا مشکل ہے کہ ہم کساد بازاری سے کیسے بچتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین میں کرونا وائرس لاک ڈاؤن کا ایک سلسلہ سست روی کے خدشات میں اضافہ کر رہا ہے۔ ان کے تبصرے اس بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں تازہ ترین انتباہ ہے کہ عالمی معیشت
सुकड़ सकती है। डेविड मालपास ने कोई खास पेशन गोई किए बगैर कहा, जैसा कि हम आलमी जीडीपी को देखते हैं, अभी ये देखना मुश्किल है कि हम कसाद बाजारी से कैसे बचते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तवानाई की कीमतों को दुगना करने का ख्याल खुद ही कसाद बाजारी को मुतहरिक करने के लिए काफ़ी है। गुज़िश्ता माह आलमी बैंक ने इस साल के लिए अपनी आलमी इक़्तिसादी तरक्की की पेशन गोई को तकरीबन 1% पॉइंट कम करके 3.2% कर दिया। जीडीपी या मजमूई घरेलू पैदावार इक़्तिसादी तरक्की का एक पैमाना है। ये पैमाइश करने के सबसे अहम तरीकों में से एक है कि मईशत कितनी अच्छी या बुरी तरह से कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, और माहिरीन इक़्तिसादियात और मरकज़ी बैंक इस पर गहरी नज़र रखते हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास के स्कूल में मुहलिक फायरिंग के जिम्मेदार बंदूक बरदार लड़के ने हमले से चंद मिनट कबल इस वाक़े के बारे में पैगामात भेजे थे। गवर्नर ग्रेग एबट ने कहा कि बंदूक बरदार सिल्वाडोर रामोस ने इरादा किया था कि वो अपनी दादी को गोली मार देगा और फिर स्कूल में फायरिंग करेगा। ये रिपोर्ट्स भी सामने आईं कि मुतासरीन ने पुलिस पर जोर दिया कि वो हमला रोकने के लिए स्कूल में दाखिल हों, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। टेक्सास के हुकाम का कहना है कि पुलिस के हाथों मारे जाने से कबल रामोस वहां 40 मिनट तक मौजूद था। एक एनी शाहिद ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि खवातीन ने अफसरान को वहां अंदर जाने के लिए शोर मचाया। एक और मुतासरा शख्स जिसकी बेटी हमले में मारी गई थी ने एजेंसी को बताया कि इसने दूसरे मुतासरीन को भागने का मशवरा दिया क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। टेक्सास के स्कूल में फायरिंग, जिसमें 19 कमसिन बच्चे और 2 बालिग अफराद हलाक हुए, ने बंदूक के कंट्रोल पर तवील अरसे से जारी अमरीकी बहस को दोबारा शुरू कर दिया है। अमरीका में बहुत से लोगों ने बंदूक खरीदने पर सख्त कवानीन का मुतालबा किया है। कौमी असम्बली ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग से मुतल्लिक साबिक हुकूमत की तरमीम को ख़त्म करने का बिल मंजूर कर लिया। इंतखाबात का तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2022 कायमा कमेटी को भिजवाने का कायदा मोतल करने की तहरीक भी मंजूर कर ली गई। MQM के साबिर कायम खानी का ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि मजबूत इलेक्शन कमीशन और मजबूत कानून की हमेशा ज़रूरत रही है। हम हमेशा इलेक्शन में इस मामले में मुतासिर रहे हैं। जो तरमीम लाई गई वो वक्त की ज़रूरत थी। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात कराने की तरमीम की गई। EVM पर इलेक्शन कमीशन में बहुत से एतराज़ात उठाए। बहुत कम फ़र्क से इस बिल को कौमी असम्बली में पास करवाया गया। ये बिल सेनेट में आया तो इसको कमेटी में भेजा गया। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि हमने इसके ऊपर बहुत से इजलास किए, रूल्स को बुलडोज करते हुए इस बिल को मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि आज का एजेंडा काफ़ी तवील है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी है। कमेटी में सिर्फ वो शामिल नहीं जो बाहर दरख्तों और इमलाक को आग लगा रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बिल की शिकवार मंजूरी ली गई। कौमी असम्बली में कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के मुताबिक चेयरमैन नैब की 3 साला मुद्दत के बाद इसी शख्स को दोबारा चेयरमैन नैब नहीं लगाया जाएगा। नए चेयरमैन की तकर्री के लिए मुशावरत चेयरमैन की मुद्दत खत्म होने से 3 माह पहले शुरू की जाए और ये अमल 40 रोज में मुकम्मल करना होगा। बिल के मुताबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक़े राय ना होने पर तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चेयरमैन नैब का नाम 30 रोज में फाइनल करेगी। नैब के कानून से वफाकी या सूबाई टैक्स के मामलात नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए हैं। नैब गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटों में नैब कोर्ट में पेश करने का पाबंद होगा। बिल के मुताबिक केस दायर होने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। नैब गिरफ्तारी से पहले काफ़ी सबूत की दस्तयाबी यकीनी बनाएगा। तरमीमी बिल में नैब की जानिब से रिमांड की मुद्दत को 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया है। बिल के तहत माली फंड ना उठाने की सूरत में वफाकी या सूबाई काबीना के फैसले नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएंगे।
किसी भी तरक्याती मंसूबे या स्कीम में बेकायदगी नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएगी। किसी भी रेगुलेटरी इदारे के फैसलों पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। तरमीमी बिल के मुताबिक एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती 3 साल के लिए होगी। एहतसाब अदालत के जज को हटाने के लिए मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी होगी। अफ्रीकी हेल्थ एजेंसी CDC ने मोंकी पॉक्स वायरस फैलने के पेश नज़र वैक्सीन जखीरा करने के खिलाफ इंतबाह जारी कर दिया। अफ्रीका की आला सेहत आमा की एजेंसी के कायम मुकाम डायरेक्टर का कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि अमीर ममालिक मौजूदा मंकी पॉक्स फैलने के दौरान वैक्सीन जमा नहीं करेंगे, जैसा कि उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन के साथ किया था। मंकी पॉक्स एक कम खतरनाक वायरल इन्फेक्शन को अफ्रीकी ममालिक कैमरून, वस्ती अफ्रीका, कोंगो और नाइजीरिया समेत 11 अफ्रीकी ममालिक में आम वायरस समझा जाता है। मई के अवाइल से कम 19 ममालिक, जिनमें ज़्यादातर यूरोप शामिल है, में वायरस के 200 से ज़्यादा मुश्तबा और तस्दीक शुदा केसेस का पता चला। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में कि वो मंकी पॉक्स के मज़ीद केसेस सामने आने की तवक्को रखता है, क्योंकि ये इन ममालिक में निगरानी को बढ़ाता है जहां ये बीमारी आम तौर पर नहीं पाई जाती। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के कायम मकाम डायरेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वैक्सीन को वहां जाना चाहिए जहां इसकी सबसे ज़्यादा और मसावी तौर पर ज़रूरत है, लिहाजा खतरे की बुनियाद पर, न कि इस बात पर कि कौन इसे खरीद सकता है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क के सदर ने कहा है कि सेंगियाल के मगरबी शहर के हस्पताल में आग लगने से 11 नौज़ायदा बच्चे हलाक हो गए हैं। सदर मैकी साल ने ट्वीट किया कि मामे अब्दुल अजीज से दिबाग हस्पताल में आग मैटरनिटी डिपार्टमेंट में लगी थी। सेंगियाल के सियासतदानों के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट्स बताती हैं कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। शहर के मेयर ने मजीद बताया कि आग से 3 बच्चों को बचा लिया गया। सदर मैकी साल ने मुकामी मीडिया को बताया कि आग बहुत तेजी से फैल गई, जबकि हंगामी खिदमात की एजेंसीज अभी तक जाए वकुआ पर मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इनकी माओ और इनके खानदानों से मैं अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ। जेनेवा में आलमी इदारा सेहत के इजलास में शरीक मुल्क के वजीर सेहत ने कहा, ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई तकलीफ देह है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से AFP के मुताबिक अस्पताल का हाल ही में नए सिरे से इफ्तिताह भी किया गया था। जब चाहें जो चाहें, खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लजीज, ताज़ा, सेहत बख्श खानों की वसी वैरायटी। लाहौरी चिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, 1026 खोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। मैनेजर अमानुल्लाह फारूकी। 9294342698 718-859-1400।